Hello, everyone. Welcome to Beyond Exams Advanced Excel Skill Training Program, where in the next 1 week, you are going to do some really cool projects related to Excel, learn some advanced concepts while building these projects, and also get to know a little more about what kinds of career options are available for you if you want to pursue uh, if you love using Excel and all the concepts that you learn during this 1 week, you'll also get a little bit of perspective as to what kinds of career options are available to you. I am Pankaj, the CEO of Beyond Exams, and I'm joined by Simran Jain, who is the instructor today here at this 1 week session. I welcome you all to this 1 week long program. What I would like you all to do is just message a hi in the group so that I know that you guys are connected and you can hear me very well. So, quickly in the next 10-15 seconds, message in the Google Meet chat a hi or something cool about you so that we know that we are all able to hear each other. I'm counting backwards from 10. Please message in the chat. 10. So we already have one. 9, 8, 7, 6. Jaldi jaldi karo. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. All right. ठीक है यार. So before we start, quickly I'll share my screen and tell you a little bit about uh, Simran ma'am. So she has done her bachelor's in BTech in computer science from PSIT in Kanpur. After that, she did her PG diploma in data science from IIIT Bangalore, which is the leading institute of computer science and data science in India. After that, she went ahead to do her master's from Liverpool John Moores University in London, and her MS was also in data science. So she has a lot of experience in analyzing data and also using tools like Excel and Python to do complex calculations, build cool things out of it. So she's going to be your instructor today. So if you guys have any questions from the very start, happy to answer them. Use the chat box as your personal connect during the entire session. Over to you, Simran ma'am. Please go ahead and um, help students learn. Hi everyone. So before starting, I have a question for you all. यहाँ पे किसको किसको बेसिक ऑफ एक्सेल आता है? हैंड रेस कर दो जिसको जिसको आता है. शिवम, काउंटिंग बैक फ्रॉम 5, 4. So everyone who knows Excel, please raise your hand. देखो एंड कॉल के बगल में ऑप्शन होगा हैंड रेज करने का. 3, 2, 1, 0. सो सिर्फ रिदम एंड शिवम को एक्सेल आता है. सो कोई बात नहीं. लेट मी स्टार्ट. तो सबसे पहले आई विल बी शेयरिंग अ ब्रीफ करिकुलम अबाउट कि एक वीक में आप लोग क्या सीखोगे, वेरी क्रिस्प, and then I'll be doing some cool projects with you guys. I hope you guys enjoy this session. So is my screen visible? Yes, we can see your screen. Yes, ma'am. Thank you. So this syllabus is shared with you guys over email as well. So basically this is a 5-day syllabus जहाँ पे हम 2 projects पे काम करेंगे. Day 1 पे हम introduction to Excel interface सीखेंगे because I believe that you must know the basics before starting the advanced Excel. So हम लोग basics first day पे cover करेंगे. Then day 2 will be basics of conditional formatting and sorting and dicing. Terms देख के ये मत होना कि यार shit बहुत heavy terms है. ये सब terms तुम लोग को भी आगे आ जाएंगी. And for day 2 पे, by the end of day 2 we'll do a small mini project that I'm expecting कि each one of you will submit. And then day 3 will continue again to the advanced conditional formatting, taking ahead it to charts. And then I want you guys to build a small report for me, plus some advanced Excel concepts as we take it forward. So this is the entire curriculum that we will be covering. And day 6 will be, you guys will be working on a project. Now, I hope this is clear.
प्लीज हैंड रेज कर दो या कुछ चैट में लिख दो, so that it becomes Everybody easier. who was able to follow along till now, please raise your hand so that एक बार सब same page पे आ जाए. Raise your hand everyone जिसको अभी तक सब clear है, so that we can start this curriculum soon. By the way, जो 2 projects आप लोग को करने हैं वो काफी real world projects हैं, क्योंकि आप सब ज्यादातर एमबीए के स्टूडेंट्स हैं. तो द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू विल बी डूइंग इज task management. As a manager, how would you go ahead in a company or a startup and manage your team and its tasks? And project 2 will be more about, अगर आप मैनेजमेंट साइड नहीं थोड़ा सा डेटा एनालिसिस की साइड जाना चाहते हो, how would you go ahead and do a little more complex calculations using Excel. Those are the 2 projects. So I think Simran ma'am, most of the students have already raised their hands. So Okay, sure, thanks. if any of you has any questions or you want us to go slow, fast, or anything like that, share something. Please use the chat box as your personal connect with the entire team. Also, Pankaj sir, I'm not following the chat box, so if you can No ping issues. me if I'll keep you there's updated. anything. Okay, sure, thanks. So going ahead, so yeah, I'll take it in a different way. I'll show you the project and step by step we'll follow कि हम इस project तक कैसे ले जा सकते हैं अपने आप को. So this is the team task management that we will be building. That was the mini project that I was talking about. ये हम day 2 के end पे बना लेंगे पूरा. So this is the basic welcome page that I feel कि whenever you submit any report होना चाहिए. So it is basically a blank page जहाँ पे you have the logo of the organization with which you are working and छोटा सा कि what is this report all about. So ये हमारा day 1 पे ये cover होगा. Plus this is a basic team task management bar जो ये हम cover करेंगे. तो इसमें as you guys can see, date, task, status we can define, deadline, other info and comments. Not wasting much of your time, let's start and साथ साथ we'll get to know कि हाँ exactly कैसे build करते हैं. तो I'm starting. अगर बहुत ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा तेज आ रही हूँ तो बता देना, I slow it down. So before starting, सबके पास अपने Google पे सबसे पहले सर्च कर लो Google Sheets, right? And जैसे ही सर्च करोगे you will find Google Sheets :sign in. यहाँ पे क्लिक करना. मेक श्योर कि यार तुम लोग अपनी ड्राइव से साइन इन हो, क्योंकि बिकॉज दिस शीट गेट सेव्ड ऑन योर ड्राइव. तो ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे can you guys see my cursor? Yes, we can see your cursor. So यहाँ पे you can see my photo. तो whenever you click on your photo, you'll know that hey, I'm signed in with my drive, with my email basically. तो ये है basic सा interface. यहाँ पे you can see that there is a blank spreadsheet, plus there are various templates also that are available that you can use. Going ahead with a blank spreadsheet and बाद में अगर time मिलता है तो we'll go ahead with the template as well. So ये है एक blank spreadsheet जहाँ पे हम अपनी data की entry कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार इसको रीनेम कैसे करें. तो क्या कोई बता सकता है कि इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं? किसी को भी ये पता हो कि शीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं? काउंटिंग बैक फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है, आई विल टेक इट फॉरवर्ड. तो यहाँ पे कैन यू गाइस सी दिस अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट? Yes ma'am. Cool, thanks. So यहाँ पे this is the name that you give to your sheet. So I'm giving it this as team task manager, right? Simran ma'am, by the way, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगता है टाइप करने में. दे आर यूजिंग चैट बॉक्स. तो दीक्षा तालरा ने रिप्लाई किया है कि बॉटम से लेफ्ट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं. ओके कूल, ठीक है यार. I'll just make sure. वैसे दीक्षा कहाँ पे बता रही हूँ, वापस से बताओगी? अनम्यूट करके बता दो दीक्षा. Yeah, it will be easier for me. And I think Simran ma'am, it would be best if you keep showing Google Sheets so that Diksha can. Sure. Diksha, if you want to unmute yourself. Yes sir, I said that नीचे जो sheet 1 लिखा होता है उसके हम क्लिक करते लेफ्ट क्लिक तो वहाँ से रीनेम का ऑप्शन आता है. थैंक्स दीक्षा. तो इसमें 2 चीजें होती हैं.
एक तो ये पूरी जो डॉक्यूमेंट है हमारी स्प्रेडशीट है, इसका नाम होता है, और एक ये सिर्फ स्पेसिफिक शीट का नाम होता है। तो तुमने ये चीज सही बताई कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करके स्पेसिफिक स्प्रेडशीट का नाम चेंज कर सकते हैं, बट ये स्प्रेडशीट का नाम यहाँ पे ऊपर से चेंज होता है। आई होप यू गाइस कैन सी माई कर्सर। तो यहाँ से स्प्रेडशीट का नाम चेंज होता है, एंड जो दीक्षा ने बोला यहाँ से स्पेसिफिक शीट का नाम चेंज होता है। तो आई राइट दिस एज वेलकम शीट। अब आई हैव टू रेप्लिकेट दिस, ये हमें बनाना है। तो यू गाइस कैन सी कि यार यहाँ पे ग्रिड लाइंस अवेलेबल नहीं है, ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही है। तो आई विल बी शोइंग यू कि ये ग्रिड लाइंस जो दिख रही है, जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्सेस कैसे हटा सकते हैं सो दैट वी जस्ट हैव अ प्लेन शीट। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, जहां तक रोज दिख रही है 1 से 40 तक रोज दिख रही हैं, इनको सिलेक्ट कर लो। एंड जो कॉलम्स दिख रहे हैं, तो बेसिकली रो इज 1 2 3 4, these are the rows, horizontal are the rows and vertical are the columns, right? And I can see the columns till R, right? So I'll select till R. व्यू में जाना, ऊपर टैब्स में व्यू दिख रहा होगा, शो यहाँ पे आईज बनी हुई है शो के साथ, यहाँ पे जाना एंड जस्ट ग्रिड लाइन में से सिलेक्ट हटा दो। तो यू कैन सी कि ये प्लेन ग्रिड लाइन जो अभी तक हमें थोड़ी देर पहले तक बॉक्सेस दिख रहे थे, वो बॉक्सेस हमारे हट गए। इतना क्लियर है क्या सबको? By the way, everyone, the recording. हाँ शिवम, please go ahead. ठीक है, तो everyone, the recording of each of these classes will also be shared with you by tomorrow. तो हर क्लास के बाद अगले दिन तुम लोग को रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी. Try to listen up here and maybe you will be able to get some time to, अगर पूरा सेशन फिनिश हो जाता है, you will have some time at the end to practice. If you are not able to follow along immediately, you can also practice after class and make sure you are ready with everything that Simran ma'am is teaching before next class starts. So जैसे पंकज सर ने बोला है, मेक श्योर कि जितना भी कराया जा रहा है क्लास में, ट्राई करो कि इतना कंप्लीट हो जाए सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू, कि नेक्स्ट क्लास तुम लोग कैच अप कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो अब आई होप कि ग्रिड लाइंस यहाँ पे विजिबल किसी को भी नहीं है। तो अब यार इन बॉक्सेस को कलर करना है। ये एक जो सेक्शन है ना, इसको सेल बोलते हैं बेसिकली, ए और ये 1, तो दिस इज अ सेल। तो अब हम इसको इस सेल को हमें कलर करना है, A1 सेल को कलर करना है। तो आई होप यहाँ पे तुम लोग को बोल्ड दिख रहा होगा, इटैलिक, यहीं पे टेक्स्ट कलर के जस्ट राइट में एक कलर फिल कलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सेल कलर हो गई, राइट? अब यार अलग अलग बैठ के सेल तो नहीं कवर कर सकते, कलर कर सकते। शॉर्टकट क्या है, पूरी शीट सेलेक्ट कर लो। पूरी शीट कैसे सेलेक्ट होती है, ए के लेफ्ट में ये जो सेक्शन दिख रहा है, ए के लेफ्ट में और 1 के ऊपर, इस पे जस्ट अ सिंगल क्लिक, फिल कलर पे जाओ, जो भी कलर पसंद हो उस पे क्लिक कर दो। प्रिफर करो कि बैकग्राउंड कलर लाइटर है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा कि ये पूरी शीट हमारी कलर हो गई है। अब नेक्स्ट टास्क है कि यार हमें अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगाना है यहाँ पे। तो लोगो लेफ्ट में लगाया जाए कि राइट में, प्रिफर्ड चॉइसेस होती है कि राइट में लगाया जाए। अब हमारे पास लोगो इंसर्ट करने के, लोगो इज बेसिकली एन इमेज, आई होप सबको पता होगा। तो लोगो इज एन इमेज और इसको हमें इंसर्ट करना है अपनी शीट में। तो हम स्पेसिफिकली जाएंगे इंसर्ट पे, इमेज पे, एंड इमेज, इंसर्ट इमेज इन सेल, इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स। तो बेसिकली हमें इस सेल के अंदर इमेज इंसर्ट करनी है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मैं ब्राउज पे गई, आई कैन फाइंड द लोगो ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो आई जस्ट क्लिक इट वंस। ये आ गया, बट यार ये लोगो तो बहुत ज्यादा ही छोटा है, मतलब ना ही मुझे MTM दिख रहा है, ना ही मुझे उसके साथ का टेक्स्ट दिख रहा है। तो व्हाट शुड वी डू? बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये तो रेप्लिकेट हो गया। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि मर्ज सेल्स होते हैं। मर्ज सेल बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सेल है L7, यहाँ पे देखो हाईलाइट भी हो जाता है जो भी सेल आप लोग सिलेक्ट करोगे। तो बेसिकली अगर मैंने सिलेक्ट किया L
तो ये K से डार्कर शेड है L का। सेम चीज अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यू कैन सी कि 6 का डार्कर शेड है, तो L6 सिलेक्ट किया एंड M6 सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मर्ज करने से क्या होगा कि इन दोनों सेल में सेम कंटेंट आएगा एंड वो बड़ा आएगा बेसिकली। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से मैं 4 इतनी रोज को मर्ज कर देती हूँ। तो OPQ 5 to 8 मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए अब हमें फॉर्मेट पे जाना है। मर्ज सेल्स का ऑप्शन आई थिंक सबको दिख रहा होगा, मर्ज ऑल। तो ये 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकली, मर्ज हॉरिजॉन्टली। तो क्योंकि हम यहाँ पे देखो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल रोज नहीं ले रहे हैं, नहीं सिर्फ हम वर्टिकल ले रहे हैं, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल ले रहे हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू मर्ज ऑल। अब इतना किसको किसको समझ में आ गया यार, तभी मैं नेक्स्ट मूव करूं, एल्स मैं वापस से। डू यू थिंक कि अब इन लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन हैं, कि वो खुद से ट्राई करें एक बार, या फिर पूरा लेक्चर एक बार कर लें? I was thinking कि वेलकम शीट कंप्लीट करके then we can give them 10 minutes of time and then we can take it ahead. All right. Okay, cool. So next है यार, बस हमें एक चीज छोटी सी ऐड करनी है. We want to add a heading to the sheet. So basically this is our team task manager. ठीक है. अब लोगों के कंपैरिजन में यू कैन सी कि जो हेडिंग है काफी छोटी है, तो इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट और फॉन्ट फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं मैं ये बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना. जिस भी सेल में इसको लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करो. तो मैंने इसको लिखा है B17 में, राइट. B17 में मैंने लिखा है टीम टास्क मैनेजर. फाइल के नीचे तुम लोग को ये सेक्शन दिख रहा होगा जहाँ पे यू कैन सी कि हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, इवन फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर बेसिकली. तो मैं सबसे पहले जाऊंगी, मैं अपना फॉन्ट साइज बढ़ा के 18 कर दूंगी या 24 कर देती हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है. अब यार यहाँ पे जिसको जो भी फॉन्ट पसंद है वो अपने हिसाब से कर लो. आई प्रेफर एरियल, so I'll go with Arial plus bold. So this is how it will look. अब इटैलिक अगर करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट जो है वो स्लैंट हो जाता है. आई होप दिख रहा होगा. इटैलिक ये हटा दिया मैंने एंड इटैलिक कर दिया, तो टेक्स्ट थोड़ा स्लैंटिंग हो जाता है. बोल्ड में थोड़ा सा टेक्स्ट उभर के आ जाता है. सेम चीज अगर हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो देयर इज अ लाइन दैट कट्स द एंटायर टेक्स्ट. अब मुझे यार एक लास्ट चीज कि अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करूंगी एंड आई कैन जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट. तो आई होप इतना अभी तक सबको क्लियर है. एक बार हैंड रेस कर लो यार जिसको जिसको इतना समझ में आ गया है, एंड अगर नहीं समझ में आया तो आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट अगेन. So I see 5 hands have been raised. बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? 6, 7, 8, great. And ठीक है, great. I think almost everybody has understood. एक बार हैंड रेज डाउन कर लो. किसको थोड़ा सा अभी कम समझ में आया, लग रहा है कि ठीक है पढ़ लिया बट थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है, वो हैंड रेज करो एक बार. हु फील्स की थोड़ा सा और, यामिनी यू फील की थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है. यामिनी प्लीज गो अहेड, बताओ क्या दिक्कत हुई. सर एक्चुअली नेटवर्क एरर हो रहा है बीच में, तो मैं कई बार क्लास थोड़ा मिस हो जाता है बीच में जब मैम एक्सप्लेन करती है. कोई बात नहीं यामिनी, ट्राई टू फॉलो एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज Yes, रिकॉर्डिंग sir. देख लेना. यस सर. सो अ क्विक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. लैपटॉप यहाँ पे कौन कौन लैपटॉप से ज्वाइंड है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर ज्वाइंड विद लैपटॉप. तो Rhythm Kochhar is joined from laptop. Anybody else? Who of you have joined from laptop? Hand raise कर रखो. Okay. तो this is a recommendation for all of you. कल से सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करना. अगर लैपटॉप ना हो तो फोन से भी कर सकते हो, नो इश्यूज. बट what we will try to do, अभी जैसे सिमरन मैम आपको 10 मिनट्स का टाइम देंगी to recreate this sheet on your own, because लेक्चर सुन के प्रोजेक्ट देख के तो ठीक है, बट जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक नहीं वो फील आएगी. तो कल से लैपटॉप जरूर साथ लाना. एंड इवन इफ यू हैव नॉट ज्वाइन फ्रॉम योर लैपटॉप, इफ यू फील कि लैपटॉप तुम्हारे आसपास है, प्लीज ओपन इट नाउ
एंड सिमरन मैम अब आपको टास्क एक्सप्लेन कर देंगी क्या है विच यू विल हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन. प्लीज गो अहेड सिमरन मैम. सो बेसिकली हमें क्या करना है आज, स्टेप बाय स्टेप सब लोग यार अपने पास लिख लो सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर. हमें सबसे पहले एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है अपने अकाउंट से जाके, राइट? हमें उसको रीनेम करना है टीम टास्क मैनेजर. स्प्रेडशीट को पूरी, उसके अंदर की शीट को, मेरा अगर कर्सर फॉलो करोगे तो याद भी आ जाएगा, उसके अंदर की शीट को हमें वेलकम शीट रीनेम करना है. इतना हो गया क्या? I'm also listing it down in the chat, so please keep continue, Simran now. Cool. Then you have to remove the grid lines in the entire sheet so that हमें boxes, हमारे पास boxes तो रहे but grid lines ना रहे, so that you get a clear picture. तो just select जितनी भी visible rows है यहाँ पे and the visible columns, and view पे जाओ, show में grid lines को हटा दो. पहले selected होगा, उसको deselect करना है. देन इस पूरी शीट को कलर करना है. तो बेसिकली फिल कलर में जाओ, जो भी कलर पसंद आए वो कलर कर दो. आई विल प्रेफर कि लाइटर शेड्स दो सो दैट इट बिकम्स इजियर. देन यू नीड टू इंसर्ट अ लोगो और एनी इमेज ऑफ योर चॉइस. अगर किसी के पास लोगो ना हो तो पेप्सी कोला किसी का भी नेट से उठा लेना. अब इसके लिए यार एक सेल में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटा लोगो आता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज मर्ज सेल. तो मेरा क्योंकि लोगो थोड़ा हॉरिजॉन्टल था तो मैंने रोज ज्यादा लिया, अपने हिसाब से देख लेना. 4-5 रोज और 5-6 कॉलम्स को मर्ज कर दो और यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, इमेज पे जाओ एंड इंसर्ट इमेज इन सेल पे क्लिक करो एंड अपने डेस्कटॉप पे ब्राउज कर लो जहाँ पे भी सेव्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा. गिव अ नेम टू, गिव अ हेडिंग टू योर बेसिकली प्रोजेक्ट. तो दिस इज द टीम टास्क मैनेजर. बाकी इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, प्लस बोल्ड, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू, जिसको जो पसंद है वो कर देना है. ये टास्क है अभी के लिए. आई होप सबको क्लियर होगा. So I've listed the entire step down, step by step on the Meet chat. You have अभी मेरी घड़ी में 7:22 हो रहे हैं, 19:22 हो रहा है. So you have till 19:32 to try it on your own. अगर आप फोन से ज्वाइन हो तो फोन पे ये चीज ट्राई करो, एंड अगर लैपटॉप से ज्वाइन हो तो लैपटॉप पे ट्राई करो. एंड कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस हो आप अनम्यूट करके तुरंत पूछो. एंड इन 10 minutes we'll ask some of you to share your screen and show us कि कितना बन पाया. Please go ahead. All the best everyone. So the first person who will present is Gaura Sharma. Gaura Sharma, you will be presenting first. उसके बाद 2 और लोग रैंडमली चूज किए जाएंगे टू प्रेजेंट. प्लीज स्टार्ट वर्किंग. एंड कहीं भी इशू आया या फिर आपको लग रहा है कि अभी मैं नहीं बना पाऊंगा ड्यू टू डिवाइस लिमिटेशन या नेट लिमिटेशन, तो प्लीज अभी अनम्यूट करके या मैसेज करके हम लोग को इन्फॉर्म कर दो, so that we know that you are not working on this small project right now. So Gaura is saying he or she won't be able to present today. Gaura, why not? क्या हो गया? अनम्यूट करके बता दो. ठीक, आई डोंट हैव लैपटॉप राइट नाउ. ठीक यार, ट्राई करो फोन पे यूज करने का, वरना 10 मिनट्स खाली बैठोगी. फोन पे ट्राई करो यही सेम चीज करने का. ड्राइव की ऐप पे जाके ट्राई कर सकती हो. फोन पे भी एकदम सिमिलर से इंटरफेस है. अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो फोन पे भी ट्राई कर सकते हो. जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो फोन पे ट्राई कर लो. तो एक
गर्ल स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट करेगी एंड एक मेल स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा, एक फीमेल स्टूडेंट एंड एक मेल स्टूडेंट। तो अब देख लेते हैं कि कौन पहले प्रेजेंट करता है। 19:25 हो चुके हैं, यू हैव 7 more minutes। किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आए, म्यूट पे वापस आना, अनम्यूट करना एंड शेयर योर डाउट्स। लास्ट 2 minutes एवरीवन। तो शिवम तुम कर रहे हो ना, तुम प्रेजेंट करोगे लड़कों को रिप्रेजेंट करने के लिए, शिवम प्रेजेंट करेगा। अगर शिवम तुम्हें लगता है तुम प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो किसी और को डेलीगेट करो। एंड लड़कियों की तरफ से लेट्स चूज दीक्षा कालरा। तुम थोड़ा सा क्लास में भी एक्टिव थी, तो दीक्षा तुम प्रेजेंट करना लड़कियों की तरफ से। इफ यू फील कि फॉर सम रीजन नहीं प्रेजेंट कर पा रही हो तो खुद से किसी और को डेलीगेट करो कि कौन तुम्हारे फ्रेंड्स में है जो तुम्हारी जगह लेगा। तो दीक्षा एंड शिवम तुम दोनों प्रेजेंट करोगे। यू हैव लास्ट 3 minutes रिमेनिंग। ऑल द बेस्ट। अभी और भी कूल चीजें सीखनी है तुम लोग को आज ही की क्लास में, तो जल्दी से कंप्लीट करो। अगर किसी का हो चुका हो तो हैंड रेस कर देना यहाँ पे, तो दैट देख लेंगे एंट्री। ओ वाओ ग्रेट, रिदम कोशर का हो चुका है, तो प्लीज गो अहेड प्रेजेंट योर स्क्रीन यार। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज रिदम प्लीज प्रेजेंट योर स्क्रीन टू शो अस योर वर्क। ऑल्सो ग्रेट यार रिदम, योर स्क्रीन इज विजिबल। अपने आप को अनम्यूट भी कर सकती हो। Yes, sir, is it visible? Yes, it's visible. Please go ahead and explain a little more कि तुमने क्या किया, कैसे किया। Sorry, sir. Can you explain what you have done so far? Yes, sir. I first renamed the page as Team Task Manager and then renamed the sheet as Welcome Sheet. I then removed the
lines and then added a logo and merged the cells to make it appear large in size. I then added a heading. I bold the text and changed the size. Great, I think you have done a great job and तुमने center में करके थोड़ा सा और creative कर दिया है. You haven't exactly copied what Simran ma'am taught, so this is great. So the organization that is helping you learn all this is Beyond Exams. So the motive is exactly this कि तुम लोग skill सीखो, कुछ innovative करो, कुछ अलग करो. तो great यार, thanks for taking the initiative of presenting. एक चीज ये कि तुमने text में टाटा मोटर्स लिखा हुआ है, तो आई थिंक सिमरन मैम ने जो सिखाया उसके हिसाब से द हेडिंग शुड बी अ लिटिल मोर अबाउट द डॉक्यूमेंट. तो सिंस इट विल बी अ टास्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट, तो टाटा मोटर्स के बजाय आई वुड सजेस्ट वहां पे टाटा मोटर्स टास्क मैनेजमेंट शीट या ऐसा कुछ लिख दो पूरा, सो दैट इट इज मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी instead of just the name. Okay. Can you edit it right now, Rhythm? Yeah. So what should I write? Tata Motors? नहीं तो यू आर फेसिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम विच इज कि तुम सेलेक्ट करना चाह रही हो टाटा मोटर्स को बट वो हो नहीं रहा है, राइट? Yes, sir. तो द इशू इज कि तुम्हें फर्स्ट वाला सेल सेलेक्ट करना होता है एंड दैट इज द सेल जहाँ पे वो कंटेंट है. ये रहा. Okay, sir. Tata Motors. अपने हिसाब से जो ये जिस बारे में शीट होगी उसको डिस्क्राइब करने के लिए लिख दो यहाँ पे. तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है टीम टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे लिख सकती हो टाटा मोटर्स टीम टास्क मैनेजमेंट शीट या समथिंग लाइक दैट. अप टू यू. Okay, sir. ठीक है. तो सिमरन मैम कैन यू हेल्प हर आउट? तो उसने इतना बड़ा नाम लिखा एंड यू कैन सी कि वो एक बार यहाँ से हटाओ तो इट्स गेटिंग हिडन. हाउ कैन? So Rhythm, do the same thing. F G H I cell को merge कर दो. Just select. हाँ. नहीं नीचे नहीं. हाँ. और कुमार. ओके. हाँ. अभी भी नहीं हो रहा तो you'll have to merge एक नीचे वाला भी because ये काफी बड़ा नाम है. तो Ma'am, basically till L. हाँ. I have to merge till L. I will suggest यार कि L तक merge कर दो and इसको यहाँ से कट करके D पे move कर दो so that it becomes center align. यहाँ से हटा के D पे move कर दो so that it becomes center align. And उसके बाद merge करो तो better होगा. हाँ, अब D से J तक merge कर दो, आ जाएगा. So basically guys, merge cell क्या करता है कि अगर तुम्हारा टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा है ना, वो एक सेल में नहीं आ पा. लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक से ही ड्रैग करो, इट विल वर्क. यस. एंड एक नीचे. ठीक है. ग्रेट यार. सिमरन हाउ अबाउट टेक्स्ट रैपिंग? अगर यहीं पे बता दें. टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हैं बट टेक्स्ट रैपिंग इसलिए नहीं बताई थी बिकॉज़ आई वाज प्लानिंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब नेक्स्ट वाला. ठीक है. ठीक है. रिदम एक चीज ये भी कर सकती हो कि फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करो, प्रेजेंट ही रहने दो, डोंट रिमूव. ओके मैम. अब ये डी वाली सेल को सिलेक्ट करो. यस मैम. फॉर्मेट पे जाओ. फॉर्मेट. यहाँ पे तुम्हें रैपिंग दिख रहा है क्या? यस मैम. रैपिंग पे क्लिक करो. अब देखो ओवरफ्लो, रैप और तीसरा क्या है दिख नहीं रहा मेरी स्क्रीन. क्लिप. हाँ. तो बेसिकली ओवरफ्लो क्या करता है, जैसे अभी जो तुम्हारे टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो फॉर्मेट में है कि तुम्हारे जो रो सेल है उससे वो ओवरफ्लो कर रहा है, राइट? अगर तुम रैप कर दोगी तो वो रैप पे एक बार क्लिक करो, तुम्हें दिख जाएगा रिजल्ट. क्लिक करो एक बार रैप पे. यस. तो ये देखो, तो इसने क्या किया कि थर्ड वाली ही रो को बड़ा कर दिया एंड पूरा टेक्स्ट तुम्हें विजिबल है. ठीक है. तो रैप टेक्स्ट यही करता है यार कि एक अगर तुम्हारे पास स्पेसिफिक सेल है तो उसमें जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से वो सेल साइज बढ़ा देता है एंड पूरा कंटेंट विजिबल हो जाता है. क्लियर है क्या? यस मैम. कूल. ग्रेट यार रिदम, यू हैव डन इट परफेक्टली. प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. हम लोग ओवर टाइम जा चुके हैं तो
Shivom, if you are ready, quickly present your screen. I'm counting backward from 5, 4, 3. Shivom, 2, 1. सर लैपटॉप हैंग मार गया सर मेरा। 0. चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस इज इट। आई होप तुम लोग ने प्रैक्टिस किया हो। अगर मिस हो गया होगा तो बाद में कर लेना। सिमरन मैम, आई थिंक वी शुड मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द Yes. session. I'm sharing my screen again. Do let me know if it is visible. It's visible. Okay, cool. So guys, इतना हमारा बन गया। अब यार सॉरी टू इंटरप्ट सिमरन मैम, एक चीज और कि अगर किसी को अभी भी क्वेश्चंस होंगे ना तो अभी करते समय तो मैसेज पे डाल देना, जस्ट सो दैट आई नो कि सब लोग ने काम करना बंद करके अब सिमरन मैम की स्क्रीन पे फोकस कर रहे हैं। एवरीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड इमीडिएटली। जल्दी से सब लोग हैंड रेज करो अपना, सो दैट आई नो कि एवरीबॉडी इज बैक। कोई ऐसा नहीं है जो भाई अभी भी करे जा रहा है पूरा। ऑल राइट, अभी 5 ही लोग का हैंड रेज हुआ है, बाकी सब। व्हाट अबाउट दीक्षा, आशीष, सार्थक, शुभ, अनिकेत, यशी, यामिनी? हैंड रेज जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी अपना हैंड रेज डाउन मत करना अभी। शिवम, सार्थक, अनिकेत, ठीक है, ग्रेट। प्लीज गो अहेड सिमरन मैम। सब लोग हैंड रेज डाउन कर दो अपना। कूल। सो गाइस, हम लोग ने वेलकम स्क्रीन तो बना ली। अब हमारा है कि यार टीम टास्क हमें मैनेज करना है। तो दिस इज द टास्क मैनेजर जो आज हम लोग बिल्ड करेंगे, राइट? तो गोइंग अहेड, जस्ट वन थिंग, क्या कोई फील्ड है थोड़ा सा इससे इसका वर्जन? बिकॉज अभी वो Yes. एम्प्टी है तो आई पर्सनली एम नॉट एबल टू फॉलो। यस। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे टास्क आ जाएगी, दिस विल बी द स्टेटस। यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। तो डेट विल बी कि जिस दिन आपको काम असाइन हुआ है वो डेट। टास्क विल बी कि क्या टास्क असाइन है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ वेलकम शीट, ठीक है? अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नॉट स्टार्टेड होंगे, तो उनको नॉट स्टार्टेड करना है। तो जूम इन बिकॉज अभी वो छोटा दिख रहा है। कंट्रोल प्लस प्लस, कमांड प्लस प्लस। इज इट विजिबल नाउ? कूल। सो कहाँ थी मैं? एक सेकेंड यार। ये डेटा टैब है। यहाँ पे जिस भी दिन तुम्हें वर्क असाइंड है वो डालना है। व्हाट इज द वर्क असाइंड, व्हाट इज द स्टेटस, डेडलाइन। बेसिकली यार वी प्रेफर कि कोई भी टास्क हो उसकी डेडलाइन हो, राइट? तो डेडलाइन इज कब तक ये टास्क कंप्लीट करना है। कोई और इंफॉर्मेशन जो तुम प्रोवाइड करना चाहते हो, और अगर कोई कमेंट है। तो दिस इज द एंटायर थिंग जो हम लोग आज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार बनाना। यहाँ पे क्या ये प्लस का साइन दिख रहा है क्या सबको? ये प्लस का साइन दिख रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, कूल। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं डे 1। कूल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स को नेम करना। तो सबसे पहले हमारी सेल का नेम था डेट, दूसरा था टास्क, तीसरा था स्टेटस आई थिंक, चौथा था डेडलाइन, पांचवा था अदर इन्फो, एंड छठा था कमेंट्स। बाकी यार अपने हिसाब से एडिट कर लेना अगर किसी और को कोई और सेल चाहिए हो तो, ठीक है? अब यार सबसे पहले तो हम लोग इसको बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बी दिख रहा होगा तुम लोगों को, जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो ये पूरा तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, ठीक है? अब यार एक चीज ये कि अब हम नीचे अगर स्लाइड डाउन करते तो मुझे ये नहीं पता यार ये किस चीज का सेक्शन था, या यहाँ पे हमने क्या लिखा था यार, क्योंकि हमारे पास तो अनलिमिटेड टास्क होंगे। तो अब हम ये कैसे याद रखेंगे कि ए वाले कॉलम में क्या था? तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने का क्या मतलब है? यहाँ पे हाथ, ये देखो ये एरो है, जब इसको 1 के ऊपर लेके जाओगे तो ये हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ड्रैग करना है डेट के नीचे। अब इससे क्या हुआ, नीचे भी जाओ, कहीं पे भी कितना भी नीचे चले जाओ, मैं देखो 1000 रो पे आ गई हूँ, बट आई कैन सी डेट, टास्क, स्टेटस। तो ये बेसिकली क्या हेल्प करता है कि हम लोगों का जो रो होती है वो फ्रीज कर देता है। तो नॉट जस्ट द फर्स्ट रो, हम लोग कितनी भी रोज फ्रीज कर देते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं यार कि
जो हमारी हेडिंग्स है बेसिकली कॉलम हेडिंग्स उन्हीं को फ्रीज करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या अलाइनमेंट। तो अभी ये आई थिंक सबको दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट अलाइंड है। मैं सोच रही हूँ कि यार ये सेंटर लाइन भी हो सकता है, राइट अलाइन भी हो सकता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज इसको पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट पे जाओ, जस्ट एक बार सिंगल क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक बेसिकली। वापस से दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं गई 1 पे और मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो ये पूरी मेरी रो सिलेक्ट हो गई। अब फिल कलर के बगल में बॉर्डर का ऑप्शन है, उसके बगल मर्ज सेल का ऑप्शन है, उसके बगल अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करो और ये देखो लेफ्ट अलाइंड है, अभी सेंटर लाइन हो गया। आई थिंक सबको डिफरेंस दिख रहा होगा, दिस इज लेफ्ट अलाइन एंड दिस इज सेंटर लाइन एंड दिस कैन बी राइट अलाइन। सो आई विल प्रेफर सेंटर लाइन, अपने हिसाब से देख लेना। तो दिस इज मेरा बेसिक सा इतना तो बन गया यार। अब मुझे क्या है कि यार यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरी डेट आ जाए, क्योंकि आई वॉन्ट कि पूरी यूनिफॉर्मिटी हो मेरी शीट में। कोई यार डेट ऐसे लिखता है 9/5/2022, कोई लिखता है 5/9/2022, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार समझ पाना कि इज इट 5 ऑफ सितंबर और 9th ऑफ मे, राइट। तो इसके लिए एक इजी ऑप्शन दिया है एक्सेल ने, पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लो। तो पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कमांड डाउन एरो, शिफ्ट कमांड डाउन एरो। क्योंकि अगर तुम इस यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा डेट भी सिलेक्ट हो जाएगा, बट डेट पे हमें फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जहां से भी हमें फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर एग्जांपल हमें सेकेंड रो से ए कॉलम में फॉर्मेटिंग लगानी, तो सेकेंड रो हमने सिलेक्ट की ए कॉलम में, शिफ्ट कमांड डाउन एरो सिलेक्ट किया एंड हम गए डेटा पे। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, डेटा वैलिडेशन करके एक टैब है, इस पे क्लिक किया और ये किस सेल रेंज पे अप्लाइड है ये भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये देखो, ये शीट का नाम है डे वन इज अ शीट नेम, A2 से 8000 इज द एरो रो की, मतलब दीज आर द नंबर ऑफ रोज जिस पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। एंड क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे बताऊंगी, बट तब तक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि दिस इज लिस्ट फ्रॉम अ रेंज। तो या मतलब एक रेंज होती है, वहां से हमें सिलेक्ट करना होता है, दिस इज लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो जो कि हमें कॉमा से सेपरेटेड होता है, नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में होती है और डेट। तो बेसिकली अगर हमने डेट कॉलम डाला है, ठीक है, अब देखो, तो अगर मैंने, तो ये देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, क्यों, क्योंकि दिस इज एन इनवैलिड इनपुट। हमने इसकी क्या फॉर्मेटिंग सेट की थी कि दैट दिस शुड बी अ डेट, है ना। तो हम यहाँ पे और भी कोई इनपुट नहीं डाल सकते, दिस शुड बी स्पेसिफिकली बी अ डेट। तो इस पर डबल क्लिक करो एंड यू कैन सिलेक्ट द डेट, डबल क्लिक करो यू कैन सिलेक्ट द डेट। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। तो अब हमें लिखना है टास्क। तो टास्क तो बेसिक लिख सकते हो कि वेलकम पेज डे 1 टास्क मैनेजर, ठीक है। ये 2 टास्क हो गई जो हमें 10th ऑफ मे तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आता है स्टेटस। तो स्टेटस बेसिकली यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या स्टेटस में लिखा है, नॉट स्टार्टेड, स्टार्टेड या कंप्लीटेड। तो अगर आप लोग एक सुपरवाइजर हो तो आपको, या एक एम्प्लॉय हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टास्क है जो ऐसे स्टार्ट हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, कौन से कंप्लीट हुए हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। तो सेम चीज हमने फिर से की, सी में हमने सेकेंड रो से 1000 रो तक सिलेक्ट किया, कमांड शिफ्ट डाउन की, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, और अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम से हमने लिस्ट ऑफ, यहाँ रेंज क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये भी बता दूंगी यार, अभी पहले लिस्ट ऑफ आइटम्स कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स में गए, अब यहाँ पे लिखा है एंटर आइटम सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो हमने लिखा स्टार्टेड कॉमा नॉट स्टार्टेड कॉमा कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये देखो शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल। तो अभी ये
सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी ये सिलेक्टेड भी दिखा देती हूँ, नॉट सिलेक्टेड में क्या होगा वो भी दिखा देती हूँ, है ना। अगर इनवैलिड डेटा हो तो वार्निंग शो करे या इनपुट ही रिजेक्ट कर दे। तो हमने कह दी कि वार्निंग शो कर दे। तो यहाँ पे अभी देखा था ना रेड कलर का यहाँ पे साइड में आ रहा था जब हमने इनवैलिड डेट एंटर की थी, वो यही था कि वो वार्निंग शो कर रहा था। तो मैंने उसको सेव कर दिया। अब ये देखो, क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया था तो ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है, स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड, ठीक है। बेसिकली अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया तो ये देखो ये वापस से एरर शो करने लग गया। तो यहाँ पे आप लोग टाइप भी कर सकते हो और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। क्लियर है क्या, या किसी को कुछ भी डाउट हो तो यार पूछ लो। पंकज सर, एम आई ऑडिबल? शिवम, शिवम? Yes, ma'am. I'm audible. हाँ ठीक है यार, ऑडिबल हूँ ना? Yes, ma'am. कूल। अभी इतना यार, किसी को भी कुछ भी डाउट हो एक बार हैंड रेज कर दो, किसको किसको समझ में आ गया है। अनमोल, आशीष, दीक्षा, रिदम, सार्थक, शिवोम, शुभ, तान्या, यामिनी, Yes, यशी। ma'am. समझ में आ रहा है। कूल, ठीक है यार। अब डेडलाइन में भी जैसे हमने यहाँ पे डेट सेट की है, सेम चीज हमें डेडलाइन में भी करनी है। तो कमांड शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ गए डेटा वैलिडेशन पे गए, डेट सेलेक्ट की एंड ये देखो इज वैलिड डेट। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हमें इज वैलिड डेट मतलब तुमने जो डेट एंटर की है वो वैलिड होनी चाहिए एंड सेव, ठीक है। अब मैं ऊपर गई और यहाँ पे भी देखो यू कैन सी द कैलेंडर टाइप व्यू। तो यहाँ पे मैंने 16 सेलेक्ट कर दी, खैर इसको सबमिट करने की डेडलाइन 16 है। अदर इनको कुछ भी नहीं है, कमेंट्स कुछ भी नहीं है। तो अब आई वांट यार कि इस पेज को रेप्लिकेट करो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार। कूल। सो यार फटाफट से आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइस कि एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले प्लस साइन पर जाके एक नई शीट क्रिएट करनी है, उसको रीनेम करना है डे 1, ठीक है। फिर फ्रीज द फर्स्ट रो। तो फ्रीज कैसे करते हैं, यहाँ पे जाओ, हाथ को नीचे खींचो एंड ये फ्रीज हो गया। डिफ्रीज कैसे करते हैं, ऐसे। तो फ्रीज द फर्स्ट रो, add the column name as date, task, status, deadline, other info and comment। इसको बोल्ड कर सकते हो, अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, प्लस सेंटर और राइट अलाइन कर दो। फिर डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब में जाके हमें डेट पे डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस एंटायर रो, डेट पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेट लगा देना है एंड सेव कर देना है, ठीक है। टास्क हमें अपनी टीम के हिसाब से डिफाइन करने हैं। स्टेटस आई प्रेफर स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, तुम लोग को और किसी तरह से प्रेजेंट करना तो कर सकते हो। तो इसमें भी हमें वही करना है, हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। बेसिकली सिलेक्ट दिस एंटायर कॉलम, डेटा पे जाओ, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, लिस्ट ऑफ आइटम्स में कॉमा सेपरेट करके डाल दो। ऑल्सो गाइस स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ठीक है। एंड फिर डेडलाइन वाले कॉलम में हमें हर टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट करनी है। तो बीट 16, बीट 17, अदर इन्फो एंड कमेंट्स। तो अब सब लोग लग जाओ यार, 10 मिनट है, फटाफट से। आई वांट कि इतना काम कर लो सो दैट यू डोंट हैव लोड ऑन योर हेड बाद में। सिमरन मैम, इसके बाद और कोई भी टॉपिक पढ़ाना है क्या? नहीं, बस दिस इज द लास्ट। ओके ग्रेट। तो ये टास्क 2 आपका आज आखिरी टास्क है एंड एग्जैक्ट 10 मिनट्स बचे भी हुए हैं 8 बजने में। तो एवरीबॉडी प्लीज गो अहेड। रिदम ने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया था फर्स्ट टास्क, लेट्स सी कि इस बार कौन सबसे पहले करके प्रेजेंट करता है। तो प्लीज गो अहेड, गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, डिस्कस करना हो, अनम्यूट करके बात कर सकते हो, अदरवाइज मैसेज में बात कर लो। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कुछ भी यार अगर नहीं समझ में आया तो एग्जैक्टली बता दो, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और यहाँ पे शायद सर ने नोट्स भी भेज दिए हैं, प्लस मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को, तो लाइक एक गाइडेड वो प्रोवाइड करने के लिए। हेलो मैम, एक बार मैम हाँ, ऑडिबल? यस यामिनी यू आर। मैम एक बार डेट की वैलिडेशन समझा दो दोबारा। ठीक है यार, तो यामिनी क्या करना है कि इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। डेटा पे जाओ, डेटा वैलिडेशन पे जाओ। यहाँ पे तो तुम्हें, क्योंकि तुमने सिलेक्ट कर रखा है तो ये सेल रेंज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्राइटेरिया में तुम्हें बस डेट सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे तुम्हें इज वैलिड डेट, मतलब अगर जो भी डेट तुमने एंटर की है वो वैलिड है तो ये एग्जिस्ट टू हो जाएगा, एंड देन दैट्स इट सेव। समझ गई क्या यामिनी? यस मैम। और किसी को कोई भी डाउट है? बता देना यार, कुछ भी होगा।
4 minutes remaining guys, जल्दी जल्दी करो. So good. Shivom has asked in a question, which is if any student is not able to join in any class, certificate will be provided to that student or not in case of absentence. तो यार absentees, अच्छा, we will be providing recordings to the lectures in case तुमने पूरा lecture नहीं attend किया है. तो तुम Beyond Exams की हम लोग की website है. I'll share my screen. Simran, if you can stop presenting for 2 minutes. All right. Done. तो यू कैन गो टू beyondexams.org. यहाँ पे हम लोग तुम्हें कोर्स का लिंक भेज देंगे जहाँ पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं. एंड उस कोर्स में लेट्स से दिस इज द कोर्स, तुम लोग एनरोल कर सकते हो. आई एम बाय लॉगिंग इन एज अ स्टूडेंट. जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है, जो तुम्हारी सारी वीडियोज हैं, वो तुम्हें इसी कोर्स में दिख जाएंगी. एंड इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड द क्लास, तो तुम्हें एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पे सारी वीडियोज तुम खुद से देखो, जो प्रोजेक्ट है वो करो. इफ यू आर एबल टू डू वॉच ऑल द वीडियोज एंड डू द प्रोजेक्ट्स, तो तुम्हें बियॉन्ड एग्जाम्स का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा. बट इफ यू आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस फॉर सम रीजन एंड तुमने यहाँ पे प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट किया, तो in that case unfortunately we will not be able to give you the certificate, because certificate is given to the students who have learned and done the projects. So it is very important कि you attend the classes. In case network issue की वजह से नहीं कर पा रहे हो attend, तो watch the videos on Beyond Exams, do the projects and get certified by the end of this week. So the link to the course will be shared by tomorrow before class. तो ऑफिशियली टाइम इज अप यार. तो who has completed the work and would like to share, hand raise करो अपना, जो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता है काम. जितना भी थोड़ा बहुत हुआ है इट्स ओके, परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग. इफ एनीबडी वांट्स टू प्रेजेंट प्लीज रेज योर हैंड. सब लोग वापस जीमीट पे आ जाओ यार. सिंस नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, जल्दी से सब लोग वापस जीमीट पे आके एक बार सब लोग हैंड रेज करो, सो दैट आई नो कि तुम लोग वापस आ चुके हो. जल्दी से काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 10, 9, जीमीट पे आके हैंड रेज करो जल्दी से. 8, 7, 6, जल्दी जल्दी जल्दी. 5, हैंड रेज एवरीवन. 4, दीक्षा, आशीष, शुभ, यामिनी, शिवम, यशी. 3, 2, 1 एंड यशी, आशीष, शिवम 0. ठीक है, ग्रेट. एवरीबडी लोअर योर हैंड्स. तो लेट्स सी कि तान्या, यशी, हिमांशु, तुम तीनों ने कैसा किया है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ. सबसे पहले हिमांशु, अनम्यूट करके बताओ कितना कर लिया.
पर हो गया, पूरा हो गया। ठीक है हिमांशु, तो स्क्रीनशॉट करके जल्दी से दिखा दे यार। तो एवरीवन हु हैज नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट देयर स्क्रीन, मेक श्योर घर पे तुम लोग कर लो। रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी तो मांग लेना यार ग्रुप पे व्हाट्सएप के, एंड वी विल बी एबल टू शेयर इन द नेक्स्ट 2-3 आवर्स द रिकॉर्डिंग लिंक एज वेल। हाँ यार, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लो यार कि तुमने क्या एग्जैक्टली बना लिया है किस। हिमांशु। यस सर। हाँ सर दोनों पहले हमने कम सर शीट पहले पहले सर यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है, डेट, टास्क, स्टेटस, डेडलाइन, अदर इन्फो, कमेंट, और फिर सर इसको लॉक कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सर हमने डेट, यहाँ पे हमने इसको पूरी इसको सेलेक्ट करके कॉलम को, और फिर डेटा में जाके और डेटा वैलिडेशन, फिर सर यहाँ पे डेट डेट सेलेक्ट करके और इसको सर सेव कर दिया, जिससे कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा कैलेंडर खुल जाए। और फिर सर टास्क में हमने जो भी हमने टास्क किया वो लिख दिया है। और ऐसे ही सर स्टेटस में हमने पूरा सेलेक्ट करके और डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके सर ये लिस्ट ऑफ आइटम डाल के यहाँ पे जो जो हमें कमेंट्स डालने हैं, कंप्लीटेड, स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड, इसको करके सर सेव कर दिया, जिससे कि हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीटेड, स्टार्टेड, नॉट स्टार्टेड। और सर ये डेडलाइन वाली डेट डाल दी। सुपर यार, गुड वर्क हिमांशु। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। एक बार हिमांशु अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, डिड यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डिड टुडे, या फिर पहली बार ऐसे ट्राई किया है? सर पहली बार किया है सर। ठीक है, ग्रेट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हिमांशु अबाउट द क्लास? व्हाट डू यू फील नेक्स्ट क्लास में क्या और बेटर करें हम लोग? सर एक्सपीरियंस वाज गुड सर, कुछ सीखने के मिला है, पहली बार एक्सेल यूज करा है, इतना काम करा है एक्सेल पे। ठीक है यार, ओवर द डेज तुम लोग देखोगे ये और एडवांस्ड होता रहेगा। आज थोड़ा सा तुम लोग ने टास्क मैनेजमेंट का बेसिक सीखा, धीरे धीरे और एडवांस्ड होता रहेगा, तो डोंट मिस एनी ऑफ द क्लासेस। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके तुम लोग को दिखा दे रहे हैं कि इसका कितना ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। तो बियॉन्ड एग्जाम्स पे ही वन ऑफ द टीम मेंबर्स विशाल है, जो एग्जैक्टली वन ऑफ आवर प्रीवियस एक्सेल क्लासेस उसने अटेंड किए थे। उसने एक खुद की टास्क लिस्ट बनाई हुई है, एंड उसने कुछ इसमें देखो कूल चीजें की। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस में उसने इमोजी डाल रखा है कि अगर टास्क कंप्लीट हो जाए तो ऐसे इमोजी दिखता है, दूसरा टाइप का। जूम करके दिखाते हैं तुम्हें। एंड पेंडिंग टास्क है तो ये देखो दुखी वाला इमोजी आता है, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो दूसरा इमोजी आता है। सिमिलरली उसने कलर कोड भी डिफरेंट तरीके से कर रखा है, एंड इतने सारे टास्क वो अपने मैनेज करके रखता है, 40-50 प्लस, ऑल बिकॉज ये एक्सेल की क्लास उसने की थी। एंड ऐसी और भी चीजें हैं जो तुम लोग क्या कहते हैं सीखोगे ओवर टाइम। तो दीज आर वेरी यूजफुल रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू आर लर्निंग हियर to attend all the classes and build the project so that तुम्हें certification at the end मिल सके। एक्सक्यूज मी सर। Yes Sarthak, सर ये सर प्रोजेक्ट में क्या करना होगा? say that again। सर प्रोजेक्ट्स में सर क्या 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 करना होगा सर? तो यही जो अभी तुम लोग यहाँ क्लास में कर रहे हो, धीरे धीरे करके यही तुम्हारा एक मेजर प्रोजेक्ट बन जाएगा कल तक। एंड सिमिलरली जो प्रोजेक्ट 2 होगा उसमें भी तुम लोग क्लास में कर रहे होगे। इन केस क्लास में पूरा नहीं कर पाते हो तो आफ्टर क्लास वही चीज करोगे जो तुम लोग टास्क यहाँ कॉलेज सॉरी क्लास में कर रहे होगे। ओके Does सर। that answer your question Sarthak? यस सर यस। ठीक है। सिमरन मैम, would you like to say something, add to this? हाँ, मेरे एंड से इतना ही है। मेक श्योर कि यार जिसके जिसके पास आज नहीं कर पाए हो टास्क, मेक श्योर कि यार हो जाए, सो दैट हम लोग कल से इजीली इसको बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए। दैट्स इट यार। एंड ज्वाइन 7 बजे एग्जैक्ट लैपटॉप से ज्वाइन Yes. करना। एंड कुछ भी क्वेश्चंस आज या कल में हो तो वो भी पूछ लेना ग्रुप पे या मेल पे, वी विल बी हैप्पी टू आंसर। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम। बाय एवरीवन, बाय ऑल द बेस्ट। बाय। सर हाँ शिवम। सर एक सार्थक गुप्ता है, उसका ना आई थिंक फोन डिस्चार्ज हो गया। वो मुझे पूछ रहा था कि किस टाइप का प्रोजेक्ट करना होगा हमको। क्या आ गया वापस, सार्थक ज्वाइन हो गया। हाँ यार, तो उसका क्वेश्चन आंसर तो कर दिया। तो सर वो बेसिकली मतलब बोलिए कैसा प्रोजेक्ट हमको क्या बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। हाँ सर मैं पूछ रहा था सर प्रोजेक्ट में से बनाना क्या क्या होगा मतलब? तो 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे यार पूरे। उसमें तुम्हारे साथ जो सिलेबस शेयर किया उसमें भी तुम्हें एग्जैक्ट डिटेल्स पता चल जाएंगी। एक है ये
टास्क मैनेजमेंट, अगर तुम एमबीए के बाद एक मैनेजर बनते हो कहीं पे या स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, तो हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन टू डू लिस्ट एंड मैनेज इट, एक ऐसा टू डू लिस्ट बनाना है। सेकेंड है डेटा एनालिसिस की साइड का प्रोजेक्ट विच यू विल बी टॉट ओवर द नेक्स्ट 3-4 days, जहाँ पे तुम लोग हॉस्पिटल के डेटा को एनालाइज करके कैंप सिलेबस, प्रोग्रामिंग कैंप सिलेबस, बेसिकली हाँ हॉस्पिटल को डेटा को एनालाइज करके हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, एंड उस रिपोर्ट में हम लोग थोड़ा सा एनालिटिक्स, एडवांस एक्सेल वाले कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। ठीक है यार। so Does this answer your question, Sarthak? यस मैम। okay, see you all tomorrow. Bye See everyone. you. Bye bye. Bye bye.